سب سے پہلے تو یار آپ کی بڑی مہربانی، آپ تکلیف کر کے یہاں پہ آئے ہیں روزوں میں، اور بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے ہیں. ویری گریٹفل سارے سینئر صحافیوں کا بھی اور جونیئر صحافیوں کا بھی. آج ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، کچھ ہم نے کامیابیاں جو حاصل کی ہیں اس کے بارے میں. اور سب سے امپورٹنٹ جو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 مارچ کو بلال کالونی میں ڈکیتی کے دوران ایک مرڈر ہوا تھا. عبد الرحمان ولد مظفر جو مزاحمت کے دوران ڈاکوؤں نے اس کو بیچارے کو شہید کر دیا تھا. اس میں ہم نے ٹیمیں بنائی ایس ایس پی سینٹرل کی سربراہی میں، اور انہوں نے بڑی تندہی سے کام کر کے ملزموں تک پہنچے. اور کل صبح کو جو ارلی ان دا مارننگ جو انکاؤنٹر ہوا، اس میں وہ جو ڈاکو تھا، ابھی اس کی شناخت افضال نام کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ مارا گیا ہے. اور اس کا جو ساتھی ہے اسامہ، وہ شدید حالت زخمی حالت میں پکڑا گیا ہے. اب یہ جو افضال ہے، اس کے پہلے بھی 13 سے زائد اس کے اوپر مقدمات تھے، اور ایک ہارڈنڈ کرمنل تھا، اور اس نے ڈکیتی کی مزاحمت کے دوران اس بچے کو شہید کر دیا تھا. تو وہ آج انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ تو ایک امپارٹنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا ہی سینسیشن، اور کیونکہ ہمارا سب کا فوکس یہ ہے کہ جو ڈکیتی کے دوران جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ان کے خلاف ہم سخت سے سخت کارروائی کریں، ان کے اوپر پہنچیں، ان کے گھروں پہ جائیں، اور جو ان طرح کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکیں ہم لوگ. تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی جس کو ہماری سب کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی ایک بہت بڑا گینگ پکڑا گیا ہے، جو 8 رکنی گینگ ہے، اور ان ملزموں کے نام بھی ہم آپ کو پریس ریلیز کے ہم تھوڑی دیر میں دے دیتے ہیں. ایک محمد اکرم اس کا نام ہے، زین ہے، محمد شہریار ہے، معاویہ ہے، معراج ہے، اور ایک شاہ حسین ہے. اور ان سے بھی کافی زیادہ موبائل فونز بھی ریکور ہوئی ہیں. اور اب ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے پاس ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ 15 وارداتیں ساری 8 رکنی گینگ نے کی ہیں جو ویسٹ ڈسٹرکٹ نے پکڑا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ گینگز جو جتنے آپریٹ کر رہے ہیں کراچی میں، ہم چاہتے ہیں کہ ان گینگز کے خلاف کارروائی کریں، گینگ ممبرز کے خلاف کارروائی کریں، جو ہتھیار لے کے آتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو یہ جو کوپ ویب بنا ہوا ہے کراچی میں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے کہ جو موبائل چھینتے ہیں، موبائل چھیننے کے دوران زخمی کرتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، ان کو ہم کسی طریقے سے قانون کے نیٹ میں لے کے آئیں. میں اس کے علاوہ یہ بتانا چاہوں گا کہ گزشتہ جو 8-10 دن ہوئے ہیں، اس میں پولیس نے کوئی 32 مقابلے کیے، 32 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں، اور 2 اس میں مارے گئے ہیں. بلکہ آج صبح کو جو ہوا اس کے ساتھ تین ہارڈنڈ ڈاکو مارے گئے ہیں، اور 31 لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں. ہم یہ 32 مقابلوں میں 31 لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور 31 کے 31 جو ہے وہ ریپیٹ افینڈرز ہیں. ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی بار بار یہ نکل رہے ہیں، بار بار لا رہے ہیں، بار بار ڈکیتیاں کر رہے ہیں، 31 کے 31 لوگ ریپیٹ افینڈرز ہیں. یعنی کہ وہ پہلے بھی انہوں نے وارداتیں کی ہیں، پھر یہ نکل کے آ رہے ہیں، پھر یہ وارداتیں کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ریپیٹ افینڈر کا جو ایشو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. 31 جو زخمی ہوئے ہیں ان 8-10 دنوں میں، وہ سارے کے سارے آلموسٹ سارے کے سارے جو ہے وہ ریپیٹ افینڈرز ہیں. پہلے بھی یہ جیلوں میں جا چکے ہیں، پہلے بھی ان کے اوپر کیسز ہو چکے ہیں. یہ 3-4 ایشوز جو میں نے آپ کو بتائے بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. اور ہمارا اور ہماری ٹیم کا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ زخمی کر رہے ہیں لوگوں کو دوران ڈکیتی، یا دوران ڈکیتی ہلاک کر رہے ہیں یا شہید کر رہے ہیں بچوں کو، نوجوان لڑکوں کو، ان کے پیچھے ہم جائیں، ان کو گرفتار کریں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. تو یہ جو 8-10 دن گزرے، ہم نے بڑا ہی ایک اسٹرانگ قسم کا آپریشن کے خلاف کیا ہے، اور بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. ہم لسٹیں بنا رہے ہیں، ہم انٹروگیشن ان کے بنا رہے ہیں، ٹیمز بنا رہے ہیں، انٹروگیشن ٹیمز ان کی انٹروگیشن کر رہی ہے. اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر ہمارے مقابلے میں زخمی ہو رہا ہے، 2 ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ باقی کون ہیں، کہاں تک یہ لوگ جا رہے ہیں، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، ہتھیار کہاں سے لے رہے ہیں. تو یہ ساری جو ایفرٹ ہے، میرا خیال ہے کہ جلدی ہم یہ جو ایک لہر آئی ہوئی ہے کرائم کی، اس کے اوپر جلد ہم قابو پا لیں گے. تو اس میں اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کائنڈلی آپ اگر ہم پوچھ سکتے ہیں. ایک چیز بتا دیجیے گا، 2 روز پہلے 3 روز پہلے ویسٹ میں گلشن میں مارنے کے انسیڈنٹ رپورٹ ہوا تھا، اسٹیٹ ایجنٹ مارا گیا تھا.
उसके साथ एक और इंसिडेंट भी हुआ था, वो भी वैसे की हदूद में आया था। बताया जा रहा था कि ये दोनों डकैती मजम्मत है, लेकिन अभी तक उस पर कंफर्मेशन नहीं हो सकी थी शायद क्या वाकयात थे ये दोनों। तो अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? 4-5 रोज हो गए जी, इसमें जो गुलशन मेमार वाला जो इंसिडेंट है, इसमें असल में पुलिस इसलिए कंफ्यूज थी कि उसमें कोई भी स्नैचिंग नहीं हुई थी। बैंक से पैसे उन्होंने ज़रूर निकाले थे और रास्ते में किसी और के उन्होंने हवाले किए, और जब ये रास्ते में जा रहे थे तो उसके पीछे पर 2 लोग आए और बड़ी स्पीड से अगर उन्होंने उनके ऊपर फायर किया है। तो अभी और उसकी जो FIR है वो भी 302 में हुई है, डकैती मज़ामत में नहीं हुई, क्योंकि मज़ामत उनसे किसी ने भी नहीं की थी और उनके शीशे भी बिल्कुल काले थे, और जो मकतूल है उसके पास भी पिस्टल था। तो ये देखने की कोशिश ये करेंगे ये टारगेट क्लिक तो नहीं है। इरफान भाई, ये बता दीजिए, तो ये टाउन में भी रिपोर्ट हुआ था केस, जो बच्चा मारा गया था जिसकी गर्दन पे गोली लगी। नहीं, वो टारगेट किलिंग है, वो अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो बैंक रॉबरी। बताइएगा कि ये वो जो साइकिल पे जा रहा था, बिल्कुल यस। अब्दुर्रहमान को जो कत्ल किया गया है, इसके किस तरह शवाहिद मिले? CCTV मैच हुई या कोई और मैच हुआ है या कोई और किसी गवाह ने शनाख्त किया? जी, सबसे पहले तो ये है कि CCTV उसकी हमें मिली और वो वहाँ पे मोटरसाइकिल में छोड़ के गए थे अपनी, उनसे भी हम वहाँ तक पहुँचे हैं, और भी हमने टेक्निकल इश्यूज हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मेन 2 एविडेंसेस थी, क्योंकि जो बच्चा था वो उनसे बिल्कुल ही काफ़ी उसने मज़ामत की थी उनके साथ, और वो अपनी मोटरसाइकिल भी वहाँ पे छोड़ के गए थे। तो उन चीज़ों से फिर हम आगे बढ़े। इरफान भाई, ये बता दीजिएगा, हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला सिर्फ दियाल अंजार साहब जो है हर उस SHO को मुअत्तल कर रहे हैं जो डकैती पे अगर कहीं हो रही है। गुलशन मेमार में एक वाकया हुआ था, तो चौधरी तुफैल ने जो है वो डकैती के वाकये को जो है वो दुश्मनी का रंग दिया था, इसके बाद वो बहाल हो गए थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई SHO ऐसा करेगा, डकैती को छुपाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए यार, इसमें वो एक तो चौधरी तुफैल बहाल नहीं हुआ, वो सस्पेंड ही हो चुका था, उसको हमने सस्पेंड कर दिया था। अब मसला असल में ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो पुलिस लीडरशिप है, हम सारे इस पे मुत्तफिक हैं, और आप सिविल सोसाइटी भी और मीडिया के दोस्त भी। हम यही चाहते हैं कि किसी भी हालत में ये जो डकैती के दौरान ज़ख्मी हो रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली किसी की जान जा रही है, उसको किसी भी हालत में रोका जाए, क्योंकि एक SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा SHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि SHOs को ये मैसेज जाना चाहिए कि वो बराए करम इसको बहुत ही सीरियस लें, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये जो एक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है कि वो इसको सीरियस लें, ताकि हम इसको किसी भी हालत में इसको रोक सकें, इसको कम कर सकें, इसको ख़त्म कर सकें। कौन सा भी बताइएगा, ये जो 7 से 8 जो है वो अभी गिरफ्तार किया है आपकी जानिब से, इनके पास से सरकारी असला मिला है, तो क्या पुलिस इनको असला फराहम कर रही है? क्या सिलसिला है? नहीं, सरकारी असला नहीं है, ये दरई का असला है। POF की इनके पास से गोलियां मिली हैं? मेरा नहीं ख्याल, बुलेट्स POF वेपन सर, POF की बुलेट्स उसकी POF की है, लेकिन वेपन दरे के हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन उसकी कौन प्रोवाइड कर रहा था, क्या सिलसिला? वो वही हम कर रहे हैं, उसको इंट्रोगेट कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, जितने भी अब आप गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ये प्रैक्टिस नहीं थी कि इंट्रोगेशन उनकी की जाए, हम इंट्रोगेशन टीमें हमने बनाई हुई हैं, SIOs और DSP उसकी डेली इंट्रोगेशन कर रहे हैं। मेरे पास इंट्रोगेशन टीम वो आ रही हैं, हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हथियार कहाँ से आ रहा है, किस जगह से इनको मिल रहा है। तो इसकी हम करके आपको बिल्कुल इसके बारे में ब्रीफ करेंगे आप। इरफान साहब, 31 मुकाबले हुए, आपने कहा कि जो जख्मी मुलजमान है वो रिपीट ऑफेंडर हैं, तो कहीं ना कहीं क्या आप समझते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में भी कहीं एक पुलिस की जानिब से गैप बनता है, इन्वेस्टिगेशन उस तरीके से हो नहीं पाती, या इन्वेस्टिगेशन अफसरान इतने कम हैं कि वो उसके प्रॉपर इतना काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मुलजमान? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो कमज़ोरियाँ हैं, इस पर तो हम किसी जगह किसी अलग मौके पे हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी खामियां हैं और बदकिस्मती से प्रोसिक्यूशन में भी खामियां हैं, जिसकी वजह से ये लोग बार बार आ रहे हैं। बार बार हमारी जो रिसर्च 100% एक्चुअल है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, और सारे उनके पास पहले भी केसेस उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। एडी साहब, मेरी एक आपसे सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या वेस्ट का इलाका हो, वहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं या हमारे अफसरान जो SHOs वगैरह हैं, वो अपनी ड्यूटी तो सिर्फ थाने में थोड़ी देर के लिए नजर आते हैं, उसके बाद भी स्ट्रीट क्राइम तो ये रोना हम कई सालों से देख रहे हैं। जगह जगह स्ट्रीट क्राइम में लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल वगारत हो रही है, डकैती मुजामत में लोग मारे जा रहे हैं। आपके अफसरान जो है वो या आपके एहलकार जो है कुछ एक मुकाबले काद करके कोई तस्वीर आ जाती है जी मुकाबला हो गया, उसके बाद कोई नजर नहीं आता कोई मामला, तो कब तक ये होता रहेगा? और माशाल्लाह उनके पुराने अफसर हैं और आप काम भी जानते हैं, स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल भी पहले भी हम आपसे रब्ता करते रहता है, लेकिन अब होगा क्या?
आपके एसएसपी साहबान निशान भाई ये अगर किसी दिन इनको खबर के लिए फ़ोन करें तो ये फ़ोन नहीं उठाते। इनके प्यारो साहब है तो वो बोलते हैं साहब अभी मसरूफ़ हैं। हफीज़ भाई से रब्ता एक दफ़ा किया था, इन्होंने मौके पे पहुंच गए थे। इस तरह का करते रहेगा तो डीएसपी साहबान एसएचओ साहबान से रब्ता करें तो वो बोलते साहब नहीं जिम्मेदारी नहीं देते, वो अगर ऑर्डर देंगे तो काम होगा। हमें बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा खामियां हैं यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, और बहुत ज़्यादा हमें कमज़ोरियाँ भी हैं, लेकिन अब मैं आपको यकीन दिलाऊँ बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी कर रहे हैं। सीनियर अफसरान हम लोग बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं और दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस लहर को हम नीचे लेके आए। ये जो बदकिस्मती से जो लहर चल पड़ी है और ये जो आपने सही निशानदेही की है, ये जो गोलियां मार रहे हैं नौजवान बच्चे हैं, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इनको किसी तरीके से, मुझे पूरा यकीन है अपने ऊपर भी, अपनी फ़ोर्स के ऊपर भी और आप दोस्तों के ऊपर भी, कि हम इस जो नासूर है इसको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। बाकी रही आपकी एक्सेस, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी हमसे भी कोताही होती है, हम आपसे एक्सेस नहीं कर पाते। हालांकि मुझे पता है कि कराची मीडिया जो है हमेशा पुलिस की जो सपोर्ट करती रही है। यार ये तो स्ट्रीट क्राइम में आपने दहशतगर्दी में भी हमारा साथ दिया है, और जो कराची जिस वक्त बहुत ज़्यादा जल रहा था, 20-20 लाशें हम उठा रहे थे, उस वक्त भी आप लोगों ने हमारा साथ दिया है। और मैं अपने अफसरान को भी कहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ शेयर करें, और आपके साथ जितना कोऑर्डिनेशन है उतना ज़्यादा अच्छा है। ये बता दीजिएगा, हम देख रहे हैं जीशान शफीक साहब जब से चार्ज संभाला है बहुत अच्छे तरीके से ये स्ट्रीट क्राइम पे काबू कर रहे हैं सेंट्रल में, और बुकटी साहब भी बहुत अच्छे से एफर्ट कर रहे हैं और उन्होंने ट्रेस आउट भी किया मुलजिमान को। दोनों एसएसपीज आपकी बहुत अच्छी टीम से काम कर रहे हैं। तो जो आपके आने के बाद कितना रेशियो वेस्ट में कम हुआ है दोनों डिस्ट्रिक्ट में? हम देख रहे हैं कम हुआ है क्राइम रेशियो। 15 कॉल्स के हिसाब से मोर देन 20 to 25% हमारा रेशियो कम हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चाह रहे हैं वो ये है कि डकैती के दौरान, मज़ामत के दौरान कत्ल ना हो, तो उसके लिए आप दुआ करें, हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं। एसएचओ को मुअत्तल कर देना डकैती मज़ामत पे, या फिर एसएचओ को टाइम दिया जाए 10 से 12 दिन का कि वो देखिए इसके ऊपर डिफरेंट डिस्कशंस हैं, कुछ कहते हैं कि ये ठीक है, कुछ कहते हैं ठीक नहीं है। आप क्या समझते हैं, अपना बताइए। यार मेरे नज़दीक तो ये है कि एसएचओ को टाइम बिल्कुल देना चाहिए, और एसएचओ क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा अफसर होता है, उसको बड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में फिर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इक़दाम भी उठाने पड़ते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर हम सोचेंगे भी सही, और कोशिश करेंगे कि जो एक ये इंस्टीट्यूशन है एसओ का उसको और हम मजबूत कर सकें। मुझे ख्याल में उन्नते जी हाँ उन्नते मुझे ख्याल में हाणे हिकु दो ॿीहर मान बारे में एॾी कोई ख़बर न आहे, छो त CPO ने डील पियो करे, उतो जो प्रोजेक्ट आहे, पर उन ते कमु कनि था पिया। शायदि हाणे उन ते वधीक कमु थी सघे, छो त IG साहब ॿीहर आयो आहे, उन्हनि जो इनिशिएटिव हुयो, मूंखे लॻे थो हाणे वरी उन ते कमु थींदो। सर स्पेशलाइज्ड यूनिट SIU भी अब आप लोगों के साथ मिलकर डकैती मुज़ाहमत पर जो लोग मारे जाते हैं उन केसेस पर काम करेगा, तो आप क्या समझते हैं इससे आप लोगों को कितनी ज़्यादा फायदा होगा? ये एक और सपोर्ट होगी हमारे लिए, क्योंकि SHO के जितने रिसोर्सेज होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन SIU जब आएगा इस फील्ड में हमारे साथ, तो मुझे लगता है कि उससे भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। अब देखें AVCC है या IVLC है, उसको भी सपोर्ट लोकल पुलिस ही कर रही होती है, SHOs ही कर रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक अच्छी सपोर्ट होगी हमारे साथ। सर ये ॿुधाइजो जो ईद में चंदरी रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मस्जिदूं ऐं इमाम बारगाहियूं घणियूं मौजूद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पारां ॿुधाइजो त को प्लान जारी कयो वियो आहे इन हवाले सां जेके हिते मस्जिदूं ऐं इमाम बारगाहियूं आहिनि उन्हनि ते केतिरी पुलिस? जी हाँ 4000 खां वधीक नफ़री असां आणंदासीं ईद नमाज़नि ते बि। ॾिसो 2 इवेंट थींदा, हिकिड़ो ईद खां पहिरियों जंहिंखे असां चांद रात चवंदा आहियूं, ऐं ईद वारो ॾींहुं, सो ॿिन्ही ते असां 4 खां 4.5 माण्हू असां आया आहिनि, ऐं असांजूं जेके कैंपूं आहिनि उहे बि लॻी विया आहिनि मार्केट्स ते। सो तक़रीबन 4 खां 4.5 नफ़री असांजी लॻल हूंदी, उनखे अलावा रेंजर्स अलॻि हूंदी। थैंक यू, बहुत महिरबानी आपकी यार, थैंक यू।